Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Bal, everybody. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare Hare Rama Hare Rama Hare Krishna. Tatsambhutam kaviratoranyaadapashyamanas Tvambijamatmani tatam sabahirvachintya Navindadabdashatam apsu nimajjamanham Chate ankure katham uhopalabheta. From that great lotus flower Brahma was generated, but Brahma certainly could not see anything but the lotus. Therefore, thinking you to be outside, Lord Brahma dove into the water and attempted to find the source of the lotus for 100 years. He could find no trace of you, however, for when a seed fructifies, original seed cannot be seen. So Brahma is born, Lord Vishnu, his powers are inconceivable. So people who cannot understand, they say mythology. It's not mythology. He can do things which you cannot do. That is called Kupamanduk Nyaya. The frog only knows what is inside his well, can't understand. Ocean is there. Similarly, we have only seen small powers of people in our life. We have not seen inconceivable power of God. So when inconceivable power is God or God is brought in, what do we say? Mythology. It's not mythology. आपके बस में नहीं है, लेकिन किसी के बस में है. So ब्रह्मा की जब उत्पत्ति होनी थी, उस समय विष्णु के पैर में लक्ष्मी सेवा कर रही थी, उनके पैर दबा रही थी.
और लक्ष्मी की मदद लेके उन्होंने ब्रह्मा की पैदा नहीं किया. ही इज इंडिपेंडेंट. अपने ही नेवल से ही गेव बर्थ. हाउ यू कैन गेट बर्थ फ्रॉम नेवल? अंगानीय से सकलेंद्रिया. कृष्णा's any anga can do work of any other anga. अंगानीय से सकलेंद्रिय वृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति चलयन्ति चिरं जगन्ति आनंद चिन्मय सदुज्ज्वल विग्रहस्य गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि. Any anga of the Lord can do work of other anga. That's the power. He could give birth. That shows omnipotency of the God. And then a beautiful lotus flower is born on which Brahma is born. Brahma cannot see. How I am born? He could not understand at all. So what did Brahma did? वो stem को पकड़ के नीचे आए. देखो भाई कहाँ से पैदा हुआ मैं. आओ 100 साल लगे. 100 साल अपने नहीं, क्योंकि उनका जिंदगी खुद 100 साल है उनका. देवता लोगों के 100 साल. और देवता लोगों के 100 साल कितने होते हैं? देवता लोगों का हमसे 360 टाइम ज़्यादा जिन है. करेक्ट. हमारा उनका 1 साल, वो हमारा 1 साल उनका 1 दिन है. ठीक है. 6 मंथ्स उनका 12 घंटे होते हैं दिन, 6 मंथ्स उनका रात. तो 360 days is 1 day of the देवतास. टाइम इज रिलेटिव. सो यू कैन मल्टीप्लाई बाय 3. हम 100 साल जीते हैं तो वो 36,000 साल जीते हैं. 100 इंटू 360 3000. 36,000 साल देवता लोग जीते हैं. छोटे देवता. बड़े देवता और ज़्यादा. वो Manvantara is another much bigger. It's like 300 million years. Manu lives for 300 million years. Top devatas also live like that. And then even more. Brahma lives for trillions of years. 311 trillion years is the life of Brahma. So Brahma, when he is born, for long time, 36,000 years of our calculation. Okay, छोटा टाइम नहीं है. Searching भाई क्या है, कहाँ से आया. Exactly like modern science are trying to study. He also tried. नहीं समझ पाओगे. Just like modern science today, they're so confused. ये क्या है भी ब्लैक होल समझ नहीं आ रहा है. क्या है ब्लैक होल? इसके अंदर आवाज सामान जाता है, कहाँ जाता है उसके बाद? अभी वो तो वाइट होल भी होता है, ब्लैक होल भी होता है, डार्क एनर्जी होता है, डार्क मैटर होता है. समझते रहो. But you will never be able to reach God in that way. And God, it's not God is far away. Brahma was searching for the source. That is his searching. That is the definition of God. God means the source. He's searching for God, but he could not understand. Why? Pantas koti shatavasara sampragamyo vayo rathavi manaso munipongavana soapi apiyast prapadasamne avachinto tatve गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि. तो कितना भी मेहनत कर लो, ब्रह्मा ने भी किया, आप भी कर सकते हो. करोड़ों साल तक भगवान को नहीं देख पाओगे. ये तरीका गलत है. ब्रह्मा भी कोशिश किया, आप भी कर सकते हो. जैसे मॉडर्न साइंस कोशिश कर रही है भगवान को हम संपर्क करें, करो. करोड़ों साल तक लगे रहो. भगवान की इच्छा हुई आपसे बात कर देंगे. ऐसा नहीं है कि उनको कोई रोक सकता है. बहुत सिंसियरली आप लगे हो. जैसे ब्रह्मा ने भी क्या किया था, बहुत सिंसियरली भगवान को देखना चाहता था. हाँ, अभी इतना जब उसका सब हो गया प्रैक्टिस, उसके बाद क्या हुआ? When this all happened, Brahma came back to the lotus frustrated. उनको नहीं दिखा, भगवान का दर्शन नहीं हुआ. ऐसे ही तो सडनली उसको आवाज़ सुनाई दी. ता पा मतलब तपस्या, तप करो. तो जब तप किया तब भगवान का दर्शन हुआ. और तप ऐसा नहीं, वो भी भयंकर तप किया. जैसे 100 साल लगे, उसमें भी टाइम लगा. बट भक्ति योगे न मनसी, बहुत सेवा से भगवान आपका दर्शन मिल सकता है क्या? अब दर्शन मिला. पहले उनको नारायण का, फिर कृष्ण का दर्शन मिला. सो दैट इज अ प्रोसेस वी हैव टू टेक. नॉट दैट प्रोसेस, दैट फर्स्ट प्रोसेस ब्रह्मा टुक, दैट इज द प्रोसेस पीपल आर टेकिंग. उससे भगवान का दर्शन नहीं होगा. सारा साइंटिस्ट लोग क्या सोच रहा है, किस तरह कुछ करने का, एक बड़ा दूरबीन बनाएगा, एक वो बनाएगा, बिल्कुल धुम मेरे को पता चल जाएगा. नहीं पता चलेगा आपको, करते रहो. लेकिन जैसे ही आप भक्ति योगे न मनसी, तो भगवान आपके दूर नहीं है. हर कण में भगवान आपको दिख जाएंगे. तो बहुत घमंड है हमको ना. किस चीज़ का घमंड है? कैदी की ड्रेस पहने हो, घमंड किस चीज़ का? कैदी का नंबर भी लगा रहता है ना, ऐसा भी नाम भी दिया हुआ है. इस दुनिया में नाम जो आपका है, वैकुंठ धाम के नाम से कोई मतलब नहीं है उसका.
आपको जैसे नया नंबर मिलता है, नया नाम मिलता है जेल में, वैसे हमको मिला हुआ है, नया जिंदगी चल रहा है। घमंड किस चीज़ का? कैदी को घमंड कभी नहीं होना चाहिए। क्या मैं तो कैदी हूँ। और दूसरा चीज, हम सोचते हैं चलो कैदी थे अब तो भक्त बन गए, तो भगवान का दर्शन क्यों नहीं हो रहा आपको? ये क्योंकि भगवान आपको दर्शन नहीं दे रहे मतलब आप भक्त बने ही नहीं हो। भक्त को भगवान का दर्शन मिलता है, हमको तो नहीं मिल रहा। दिल में भगवान दिखते हैं, हर कण में भगवान दिख रहे हैं क्या? नहीं, तो अभी आप भक्त बने ही नहीं हो। प्रेमांजना चुरित भक्ति विलोचनेना संतैव सदैव हृदयेश विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ये कुछ लोग का है नहीं, ऐसा है कि कुछ होगा मृत्यु के समय, कुछ चमत्कार होगा और हम वैकुंठ धाम चले जाएंगे। ये सब बकवास है। प्रगति पूरा जिंदगी होता है, उस समय नहीं होता एक क्षण। अगर भगवान का कृपा खाली उस समय, बाकी दिन क्यों नहीं मिल रहा? मतलब हम सेवा नहीं कर रहे, भगवान आपकी सेवा से खुश है नहीं। जब भगवान खुश होंगे तब आपको दर्शन मिलेगा, दर्शन नहीं है तो अभी खुश है नहीं। सत्य है ये। तो हम इस सत्य को देखना नहीं चाहते, लेकिन स्वीकार करना चाहिए। अभी भक्त बने नहीं है। भक्त बहुत बड़ा चीज़ होता है, उसको मजाक नहीं समझना चाहिए। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि इसको एक प्लेथिंग नहीं बनाओ, भक्ति को एक खेल नहीं बनाओ। ये खेल नहीं है, ये बहुत सीरियस अटेम्प्ट है। जैसे भक्ति के नौ प्रगति के मार्ग हैं, स्टेप बाय स्टेप, और अंतिम चरम सीमा जो है कृष्ण प्रेम, उसमें भगवान का दर्शन होता है। श्रद्धा, साधु संगा, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति भाव प्रेम, जब श्री राधा गोविंद की। तो अभी हम उसने इसलिए विग्रह, अभी आप आध्यात्मिक भगवान के दिल में या हर कण में जो है दर्शन नहीं ले सकते, इसलिए विग्रह और दर्शन लीजिए। ये ट्रेनिंग है आपको। विग्रह की सेवा करिए, आप मंदिर साफ करिए, भगवान का पूजा करिए, भगवान को भोग लगाओ। इसलिए जो कनिष्ठ भक्त है उसके लिए तो विग्रह सेवा बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज उसको विग्रह का दर्शन होता है, विग्रह को नमस्कार करता है। जैसे बहुत बारी मैंने एग्जाम्पल दिया था, सिंपल एग्जाम्पल है। अगर आपको ये कोई फोटो हमारे राधा गोविंद का कहीं भी है, कोई दिखाएगा, अरे ये हमारा विग्रह, कैसे आपने आइडेंटिफाई किया? इसका प्रतिबिंब आपके मन में चला गया अभी, करेक्ट? चला गया? नहीं चला गया? नहीं तो आप आइडेंटिफाई कैसे किया? तो धीरे धीरे आप दर्शन करते रहेंगे भगवान का, तो जब आप सोचोगे भी तो वही पिक्चर आपके सामने आएगी, करेक्ट? हाँ, तो इस तरह विग्रह का सेवा करते हैं और इसमें मेडिटेट करते हैं, तो धीरे धीरे आपको भगवान का, यही आपका दर्शन है अभी भगवान का। अभी आप जो भगवान का दिव्य रूप है जो हर कण में और पर आपके दिल में है, अभी आप उसका दर्शन नहीं ले सकते, आप रेडी नहीं है। इसलिए विग्रह का दर्शन ले जाता है, विग्रह की सेवा होती है और आप उसका दर्शन लीजिए, आपका आध्यात्मिक प्रगति होगा। जैसे जैसे आपका आध्यात्मिक प्रगति होता जाएगा, फिर आपके दिल में परमात्मा भी आपसे बात करने लगेगी, है ना? आपको डायरेक्शन आते हैं। सो ये अलग अलग स्टेजेस हैं, बट अभी हमको शांत होकर समझना चाहिए, थोड़े ठंडे दिमाग से, कि जो योग का लक्ष्य होता है वो होता है भगवान का दर्शन। कोई भी योग हो, अष्टांग योग में दर्शन जो दिल में परमात्मा का है, भक्ति योग में भी उसका लक्ष्य रहता है भगवान का दर्शन करना। प्रभु जी बोलते हैं हमेशा भक्त को ये भूलना नहीं चाहिए, मैं भगवान को क्यों देख नहीं रहा हूँ, मैं भगवान को क्यों नहीं देख रहा हूँ। नहीं तो बेमतलब में घमंड आ जाता है। एक आरती सीख ली, घमंड किस चीज़ का भाई? भगवान का दर्शन हुआ नहीं, चुप रहो, बैठे रहो। त्रिनाद सुनी छेना, घमंड किस चीज़ का हो रहा तुमको? सत्य दिख रहा है ना, दर्शन है नहीं है, तो क्या कर रहे हो? घमंड करके क्या फायदा आपको? आप, भगवान ने तो आपको रिजेक्ट करा हुआ है, आप किस चीज़ का घमंड रख रहे हो? किस चीज़ का घमंड रख रहे हो? ठीक है, भगवान के लिए भोग बनाते हो, भगवान ने दर्शन दिया नहीं, तो किस चीज़ का घमंड है तुम्हें? भगवान ने तो एक्सेप्ट नहीं किया तुमको अभी। भगवान जब आपको एक्सेप्ट करते हैं पूर्ण रूप से, खुशी से, यस आपकी सेवा स्वीकार है, तो आपको दर्शन नहीं मिलता है भगवान का। उनको आपको देखने का बहुत ज़्यादा मन है, लेकिन आप अभी रेडी नहीं है, इसलिए भगवान नहीं आते। ये बहुत अच्छे तरह से समझाया गया है भागवत में प्रथम खंड में। जो नारद मुनि तपस्या करते हैं शुरू में, उनको भगवान दर्शन देते हैं, क्योंकि छोटा सा बच्चा होता है जंगल में, उसको प्रोत्साहित करने के लिए।
लेकिन उसके बाद वो परमात्मा पे मेडिटेट कर रहा होता है। आजकल के जो पाखंडी योगी की तरह नहीं, जो लाइट कैंडल में करके ये सब नाटक करते हैं, तमाशा है, ऐसा बकवास नहीं कर रहा था। वो दिल में परमात्मा का दर्शन चाह रहा था। उसको भक्ति वेदांता बहुत संतों ने गाइड किया था। बहुत शांत होकर जंगल में बैठ के उसने मेडिटेशन शुरू किया, ध्यान शुरू किया, और उसको बहुत ही शीघ्र भगवान का दर्शन भी मिला, परमात्मा का। जब दर्शन उसको परमात्मा का मिला, उसके बाद तो बहुत आनंद आया। भगवान को देख के एक्चुअली बहुत खुशी होता है। एक ट्रांसेंडेंटल एक्सपीरियंस है भगवान को देखना। देखते ही उसके सारी इंद्रियां तृप्त हो गई थी, बहुत ही खुश। प्रभुपाद जी उधर लिखते हैं, करोड़ों जन्म से एक्चुअली आप भगवान के दर्शन से वंचित हो और वही चाहते हो, उसी को ढूंढ रहे हो। सब लोग ढूंढ रहे हैं भगवान को, एक्चुअली मालूम नहीं है। परीक्षित महाराज का नाम परीक्षित था, लेकिन हम सब भी परीक्षित हैं। हम सब लोग भगवान को ढूंढ रहे हैं। लेकिन उसके बाद दर्शन देने के बाद भगवान अदृश्य हो गया, रोने लग गया। छोटा बच्चा था जंगल में, कोई चीज़ उसको इतनी आनंद दे रही है और चले गया, रोने लग गया। तो भगवान ने उस पर कृपा करी, लेकिन दर्शन नहीं दिया। आवाज़ सच बोला उसको, भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं। हाँ नारद, अभी तुम कुयोगी हो। कुयोगी मतलब नहीं, मतलब योगी नहीं हो, कुयोगी। कुयोगी मतलब अभी कच्चे हो, आम थोड़ा कच्चा है, इसलिए तुम्हें अभी मेरा दर्शन नहीं मिल सकता है। अभी तुम तप को कंटिन्यू करो। तो सेम वे हमको आप ले लीजिए, सेम वे विग्रह का दर्शन मिलता है अभी, बस उतना ही मिलेगा। आप बोले विग्रह भी बात कर सकते हैं आपसे, विग्रह भी नाच सकते हैं, नहीं करेंगे अभी आप, क्योंकि हम अभी क्या है, कुयोगी। कुयोगी योगी नहीं, हम क्या है, कुयोगी। जब योगी बनेंगे भगवान का दर्शन जरूर मिलेगा आपको, ठीक है। तो बहुत बड़ी चीज़ है, इसको हम लोग समझते नहीं है। हाँ, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये स्पिरिचुअल लाइफ में हमको थोड़ा सीरियस होना चाहिए और अपना लक्ष्य नहीं भूलना चाहिए। लक्ष्य भूल जाते हैं तो उसको योग भ्रष्ट बोलते हैं। योग भ्रष्ट जैसे जंगल में जाके वो योग करते थे, उनका लक्ष्य है भगवान का दर्शन करेंगे, परमात्मा का दिल में, लेकिन बीच में रास्ते में उनको कुछ शक्तियाँ मिल जाती हैं। फिर वो उन चीज़ों से उनको घमंड आ जाता है, समाज में उनको दिखाते हैं उन शक्तियों को, भाई मेरे को सिद्धि मिल गई, मैं पानी पे चल सकता हूँ, मैं हवा में उड़ सकता हूँ, मैं कुछ ये सब आपको हिप्नोटाइज कर सकता हूँ, ये सब कुछ सिद्धि मिल जाती है, बस कुछ मैं सोना बना सकता हूँ, राख फेंक सकता हूँ। उसको बोलते हैं योग भ्रष्ट। उसको आदर नहीं जैसा शास्त्र में योग भ्रष्ट बोला जाता है। लेकिन साधारण समाज में कोई पॉपुलर हो गया, किसी ने पैसा बना लिया, उसी को सक्सेस माना जाता है, उसको योग भ्रष्ट बोला जाता है। वो सक्सेस नहीं है। हमारा जीवन का सक्सेस है भगवान का दर्शन करना, हमारा जीवन का कोई और सक्सेस नहीं है। भगवद गीता में कृष्ण बोलते हैं, मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यताम अपि सिद्धानाम कश्चित् माम वेति तत्वतः। जनरली लोग, साधारण लोग इंद्रिय भोग में व्यतीत रहते हैं, बहुत थोड़े लोग भगवान के दर्शन के लिए आगे निकलते हैं, और उसमें से भी बहुत कोई एक आदमी है जिसको भगवान का दर्शन मिलता है, ठीक है। तो ये ब्रह्मा भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गलत तरीका ले रहे थे, ठीक। ये तरीका काम नहीं करेगा। असली तरीका है भक्ति का। तो भक्ति का तरीका बहुत सहज है, कोई भी अडॉप्ट कर सकता है, लेकिन उसमें विश्वास चाहिए होता है। क्यों करोगे भक्ति? किसी को नमस्कार कर रहे हैं, उनका भजन कर रहे हैं, उनके भागवत पढ़ रहे हैं, उनके लिए क्यों? उसे विश्वास चाहिए, और ये विश्वास पाना आसान नहीं है। इसलिए कलयुग में हरि नाम दिया गया है। कोई भी आदमी इतना अगर शुरुआत कर दे, विश्वास पे ही बनता है, इतना अगर शुरुआत कर दे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये भगवान का नाम का जब शुरू कर दे, बहुत शीघ्र उसको भगवान का विश्वास आ जाता है, ठीक है। यही तो हमने किया था हम लोगों ने, किसी तरह, अरे जब कर दो ना, चलो यार कर देंगे, एक थोड़ा कीर्तन में चले गए, जब किया, धीरे धीरे थोड़ा विश्वास आना शुरू होता है। वो आध्यात्मिक प्रोसेस है, भौतिक प्रोसेस नहीं है। उसको आप लॉजिक से समझ नहीं पाओगे। क्यों भाई, क्या जब करके क्या भगवान का विश्वास आएगा? नहीं, मेरे को लॉजिक पढ़ना है, आएगा, सब आ जाएगा। लॉजिक से भी समझ सकते हैं भगवान को, लेकिन लॉजिक के एलिमेंट्स का आपको दर्शन नहीं है, ठीक है। अभी
चीज़ है, ऐसा नहीं है। और वैसे भी जब मन बहुत अस्थिर होता है उसमें लॉजिक काम नहीं करता। सो इस तरह ब्रह्मा का जो प्रोसेस है, दैट प्रोसेस ऑफ तपस्या कि भाई जरा ढूंढते हैं, वो नहीं काम करेगा। हमारा असली प्रोसेस होना चाहिए भक्ति, उससे भगवान का दर्शन होगा। तो इधर ये लिखा गया है, प्रभुपाद जी पर्पट में बोल रहे हैं, वेरी इंटरेस्टिंग, कि पहले लोग ऐसा, अभी लोग ऐसा बोल रहे हैं कि कुछ एक चंक था। कुछ लोग बोलते हैं चंक, कुछ बोलते हैं नथिंग था, फ्रॉम यूनिवर्स केम फ्रॉम नथिंग। बट ये भी क्या नथिंग, ऐसे तो समथिंग बाहर आता है, ये तो स्पेशल सम नथिंग नहीं है, समथिंग है। फिर नथिंग से तो कुछ नहीं होना चाहिए ना, और नथिंग से समथिंग आ रहा है, पूरा यूनिवर्स आ रहा है, वो नथिंग भी कुछ स्पेशल नथिंग है, वो नथिंग नहीं है, समथिंग है। तो चलो दे बोलते हैं चंक था, एक और थ्योरी है चंक था कुछ एक, वो चंक कहाँ से आया और वो किसी ने फोड़ा उसको। सो हेयर प्रॉपर सेज ओके, इवन इफ इट इज चंक, एक्चुअली बीज के रूप में यूनिवर्स आता है भगवान से, यू कैन टेक इट एज अ चंक, एंड भगवान की दृष्टि से वो एजिटेट होता है। यूनिवर्स भगवान की दृष्टि, उनकी दृष्टि में बहुत शक्ति है। भगवान राम जब समुद्र को देखे थे पूरा समुद्र हिलने लग गया था। हमारी दृष्टि में कोई शक्ति नहीं है, कुछ नहीं होता। महाविष्णु पूरी भौतिक प्रकृति पे दृष्टि डाल के उसको प्रेग्नेंट कर देते हैं, कोई नहीं कर सकता ऐसे। करोड़ों जीव को पैदा कर देते हैं सृष्टि में, उनका दृष्टि में भी बहुत शक्ति है। ठीक है, तो भगवान अपना दृष्टि से, अपनी विल पावर से ये एजिटेट्स मेटल एनर्जी, ठीक है, एंड ही एंटर्स इट as Garbhodaksha Vishnu. Then further he gives birth to Brahma, and then Brahma creates a universe, and Lord enters everything including atom as Paramatma. So that is actually the process of creation. Srila Prabhupada ki Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare